کراچی میں قائم غیر قانونی شادی ہال فوری گرانے کا حکم۔ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کمشنر پر برہم، کہا شہر میں جس جگہ جائیں شادی ہال بن رہے ہیں، بیشتر شادی ہال رفائی پلاٹوں پر بنائے گئے، آپ کمشنر کراچی ہیں، جائیں ان شادی ہالوں کو گرا دیں۔ ہل پارک تجاوزات کیس میں مکینوں کی فریقین بننے کی درخواست لارجر بینچ نے مسترد کر دی۔ باغ ابن قاسم کی تزئین و آرائش مکمل کرنے اور شرائع قائدین کے نالے پر قائم ٹاور کو گرانے کا حکم۔ ڈی جی بلڈنگ کنٹرول نے کہا کہ کیا کل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی کوئی عمارت بنا دیں گے، سپریم کورٹ کی عمارت پر بھی دعویٰ کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں مختار کار تعینات کرنے کے کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وزیر اعلیٰ سندھ کو کہیں یہاں آ کر وضاحت دیں، کراچی کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، ملک کے پہلے کیپٹل سٹی کو کیا بنا دیا۔ چیف جسٹس کی ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی سرزنش، کہا کیوں بلڈرز کا دفاع کر رہے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ، انہیں معلوم نہیں ان کے خلاف کتنے نیب ریفرنسز بنیں گے۔ اگر مختار کار کراچی کو آپریٹ کر رہا ہے تو شہر گیا۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ، سپریم کورٹ نے منصوبے کو 9 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ٹریک سے تجاوزات ختم کر کے ریلوے اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری ریلوے نے عدالت کے روبرو کہا کہ منصوبہ کراچی سٹی سے ڈرگ روڈ تک آپریشنل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں تعینات پریزائڈنگ افسران کے لیے اسمارٹ فون لازم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لیں گے۔ وہ تصویر پریزائڈنگ افسران پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور سگنلز کی خرابی کی صورت میں پریزائڈنگ افسر نتیجہ لے کر ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچے گا۔ فلیٹس مل رہے ہیں اس طبقے کو جو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنے گھر پہ اپنی چھت ہو۔ یہ جو 600 گھر اب کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک شروعات ہے۔ انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچی آبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد فراش ٹاؤن میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک میں سستے گھروں کی تعمیر کے لیے کئی مراحل طے کر لیے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 2000 فلیٹ اس طبقے کو مل رہے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گھر کا تصور نہیں کیا تھا۔ 600 گھر کچی آبادی کے افراد کو دے رہے ہیں۔ ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو ہم قرضہ اتار سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ساری رہنما نون لیگ حمزہ شہباز کا رمضان المبارک میں عوام کو فوری رمضان ریلیف پیکج دینے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن تاحال نااہل حکومت رمضان پیکج کا اعلان نہیں کر سکی۔ بڑے بڑے بیانات اور دعووں کے بجائے عمران نیازی عوام کے لیے فوری رمضان پیکج کا اعلان کریں۔ جہانگیر ترین عدالت سے سرخرو ہوں گے، کارکن عمران خان سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقاوان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا علیم خان اور سبطین خان پر بھی الزام لگے مگر انہوں نے بھی پتھراؤ کی بجائے قانون کا راستہ اپنایا۔ جہانگیر ترین پر جب انگلی اٹھی تو عمران خان نے سرکاری چھتری یا تحفظ نہیں دیا۔ پارٹی میں اعلیٰ قیادت پر انگلی اٹھتی ہے تو جواب تو دینا ہوگا۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹے میں مزید 98 افراد جاں بحق، 5329 نئے کیسز رپورٹ۔ فعال کورونا کیسز کی تعداد 66,994 ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ ایک روز میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10.69% رہی، جبکہ 2610 افراد صحت یاب ہوئے۔
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस की समाअत। हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस आज अदालत में पेश न हो सके। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अमीन मकाम, जावेद अब्बासी और मरियम औरंगजेब की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर आमदन से ज़ाद असासाजात केस में एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसीह कर दी। महंगाई बढ़ रही है और आवाम के लिए हर दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली महंगी होने पर हुकूमत के लोग एक दूसरे को मुबारक देते हैं, नहीं जानते हमारा वजीर खजाना कौन है। उधर लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ लहराए जाने वाले कागजात कूड़े के डब्बे की जीनत बन चुके और अब शहजाद अकबर समेत हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह बोले, जहांगीर तरीन मकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं, उन्हें शरीफ खानदान के कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग कहने की मजम्मत करनी चाहिए। जस्टिस का कमिश्नर कराची को तमाम गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शरह कायदीन नाले पर कायम गैर कानूनी इमारत गिराने का भी हुक्म। हिल पार्क तजावुजात केस में मकीनों के फरीकैन बनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का 9 माह में कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल करने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसों की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू रॉयल पार्क केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे जो काम करने को कहा था क्या हुआ? आपने क्या हमें सरकारी दफ्तर समझा है? कमिश्नर कराची को फारिग करें। हमारे सामने डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट कैसे पेश की? कमिश्नर कराची ने बताया कि हॉकी ग्राउंड खेल के मैदान बना दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, हमारा ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं। कमिश्नर कराची ने कहा कि किडनी पार्क हो या सब जगह, काम खुद निगरानी में करवा रहा हूँ। रॉयल पार्क में सब टावर गिरा दिए गए। चीफ जस्टिस के पूछने पर कि हिल पार्क का क्या हुआ, कमिश्नर कराची ने बताया कि कुछ मकीनों ने नजरसानी दरखास्तें दायर की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने घर खरीदे वो इतने मासूम नहीं, उन्हें सब मालूम था। कमिश्नर कराची ने कहा कि क्रैक साइड शॉपिंग सेंटर अदालती हुक्म पर सील कर दिया। तिजोरी हाइट्स को भी अदालती हुक्म पर सील कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, बाग इब्ने कासिम की क्या सूरत हाल है? कमिश्नर ने बताया कि बाग इब्ने कासिम की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं। बाग इब्ने कासिम में तामीरात को मुनहदिम कर दिया है। अदालत ने कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम के तज़ीन और आराइश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार दे दिया। तमाम प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को मोबाइल पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत भी की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेंगे और तस्वीर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ही मुतालिका रिटर्निंग अफसर को भेजने के भी पाबंद होंगे। इंटरनेट और सिग्नल्स की खराबी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा लेकर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। बदकिस्मती से माजी में ऐसे कर्जे ले लिए गए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि मेरा ख्वाब है कि कच्ची आबादी वालों के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं सीडीए को खास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपने खिताब में मजीद कहना था कि 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था 20,000 अरब था। पाकिस्तान में 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं, इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले महीने FBR ने सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया है। सिंध हुकूमत के साथ बंडल आइलैंड मंसूबे पर बात कर रहे हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये लोग रहे तो मुल्क में मजीद तबाही आएगी। माजी में बेहतरीन टीम होने का दावा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म को बार बार अपनी मुआशी टीम तब्दील करना पड़ रही है। नून लीगी कैंप से हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी। मोहम्मद जुबैर ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मईशत बदहाल है और हमें ये नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना कौन है। एक तो टीम थी ही नहीं, पहले कुछ था ही नहीं। पहले हफीज शेख के पास क्यों गए थे? टीम थी ही नहीं। एक असद उमर को जब जैसे ही फारिग किया तो इनके पास कोई था ही नहीं, और पहले कहते थे 200 हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं मईशत के। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरों को गायब करने की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। डस्का के आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन का पहरा दिया, अपने वोट का पहरा दिया, इसी तरह 10 अप्रैल को आपने बदला लेना है अपने इलेक्शन चोरी का। राना सनाउल्लाह ने तनकीदी तीरों की बारिश करते हुए कहा, हुकूमत डाकुओं को पकड़ने की बजाय कारोबार करने वालों को पकड़ रही है। हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि किसी के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीफ फैमिली के साथ ये जुल्म हुआ। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन को शरीफ खानदान के कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग कहने की मजम्मत करनी चाहिए थी। हुकूमती इक़दामात के बाइस चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुँच सकती है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक कावान ने कहा है कि करप्शन के खात्मे के लिए निज़ाम में तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। नून लीग की साबिक हुकूमत में अवाम का इस्तेहसाल होता था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया था कि हम निज़ाम को बदलेंगे। जो अवाम का इस्तेहसाल होता था उसके अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करने के लिए निज़ाम को बदलना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी, और वो बदलने के लिए टेक्नोलॉजी ही एक वाहिद ज़रिया और हल था। आगे बढ़ेंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। पार्टियां अगर एक पेज पर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि PDM खत्म हो गई। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है या किसी और पार्टी की कोई डील हो गई है। कोई ऐसी बात मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, और अगर मेरे इल्म में नहीं है तो मेरा ख्याल इस किस्म की कोई बात है नहीं। पार्टियां अगर एक पेज पे ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन ख़त्म हो गई है या PDM ख़त्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ PDM चलती रहेगी, और ये जो डिफरेंसेस हैं इस पे डायलॉग होगा पार्टियों के बीच में, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपस में इनका सेटलमेंट हो जाएगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इलेक्शन कलअदम करार देने की अपील दायर कर दी गई। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से जावेद इकबाल बेंच ने दायर अपील में कहा है कि सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अपील के साथ प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा भी की गई है।
एहतसाब अदालत लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ को जेल से लाकर पेश किया गया। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त में बताया गया कि हमजा शहबाज को कमर में शदीद तकलीफ है, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। अदालत में शहबाज शरीफ ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ से कमरा अदालत में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम ने मुलाकात की। नायब इस्लामाबाद टीम ने कैन कमिश्नर के दफ्तर पर छापा मारकर चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चीनी स्कैंडल के हवाले से इंक्वायरी कर रही है। नैब ने कई मरतबा कैन कमीशन ऑफिस से गुज़िश्ता 3 साल की बरामद का रिकॉर्ड तलब किया, लेकिन रिकॉर्ड की फराहमी में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। चीनी की बरामद में शुगर मिल्स मालिकान को अरबों रुपए सब्सिडी के मामले में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर एम खान को भी नैब तलब कर चुका है। सिकंदर एम खान गुज़िश्ता माह नैब इस्लामाबाद को मतलूबा रिकॉर्ड दे चुके हैं।